तारीख है 29 जून 2022। समय हो गया है 11:01 PM। अभी कैपिटल टीवी पे एक मीडिया डिस्कशन चल रहा है पाकिस्तान के हालात के मामले में। तो बात हो रही है पाकिस्तान के अंदर महंगाई को लेकर, और presence of Shehbaz Sharif suddenly he appears on stage instead of Mariam Nawaz. अब मैं आपको बताता हूँ what is happening inside of Pakistan. Because here in India, the government of India and the special officers, Secret Service Bureau, SSB, yes, Special Service Bureau, SSB, actually they issued a direct statement to all departments. You do mind your business. You don't have a need to stop Hitesh. Whatever he is saying, you want to listen, listen. If you don't want to listen, don't listen. Don't try to interrupt him. First off. Now I'm telling you, I made some video and I tweeted. So many person in Pakistan is watching my tweet also. Suddenly tweet comes in change of law here in India. Earlier the tweet was belongs to war and videos. I was abusing Pakistani politicians, each and everyone. Blame, yeah, whatever. And so many business deals. But my friend is asked in a different manner that this what is happening is here in Pakistan is not understandable for us. Why? What is this? मतलब उनका कहना डायरेक्ट मेरी तरफ ये था कि यार हितेश, you are doing directly so many things and we know very well the effect whatever is going to come on Pakistan is it's really a disaster. And as a youth in Pakistan, we are feeling suffocation. This is real? Yes. Like we filled with angerness and irritation. What is happening? What they are doing? What Shehbaz is doing? What you are tweeted? You directly quoted to the ICJ, and none of the from Indian government is ready to reply, and the media was silent on what you did. And since we read your text you written on you wrote on a Twitter, was really created a big worries for us. Because to believe so, we are a youth of Pakistan, but none of them is listening to us. I don't know why they have stopped the media. At least the media debate should be started and let the entire world know what he is doing. While he is saying he is each and every belt number, why should the Indian government to tell to you? They will not tell to us. Who is he? Now you go and ask and check it. While already ISI said so. Yes, he is the responsible. Directly he said recently in ICJ that he killed more than a 9 crore personnel, and I am informing you, my friend, your 250 pilots we killed. That's it. Now the thing is it this war? What kind of Judaism is it? What kind of Zionist you are? What kind of Muslim you are?
While you don't want to be in debate with the Hitesh, even you are not opening a debate. Why? Are you killing Pakistan? The both armies fight more than 9 times in just 2.5 years. While their Modi was also ready to help Pakistan, but what Indian army is doing and what Hitesh is doing is comes day by day in a series. And we know very well that Hitesh is not educated enough. He is only a graduate by 42%. He never gone through any commando training, nor police training, not even he gone through any law college. But yes, he did whatever. Is Pakistani media is silent, and even they don't have anything to talk. They directly get order from the ICJ that POK belongs to India, and an Indian army in name of JSR security is inside the Pakhtunkhwa. They separated Balochistan openly, and in second was the Bajwa, and the radio of Pakistan admitted so. We are youth of Pakistan feeling very irritating suffocation from inside. We know Hitesh is in very friendly nature, but whenever we comes in front of each other with the holding weapons in our hand, and what should we do? What the hell is happening on the border? If it's a fight is only thing, then let's go for a fight or open a media. But none of them, all of you is ready to open the media. I recently asked you this, what is this happening? My friend, my answer to you is very simple in Hindi. देख यार ऐसा है दोस्त सीनियर, इनके हाथ से बात निकल गई है, बस ये याद रखियो, इनके हाथ से बात निकल चुकी है, समझ में आई? अभी कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ रही है? और कोई बात नहीं। अगर ये सोचे ना मीडिया में दिखा नहीं रहे, तो मैंने बोला ना यार, I tell them that I will not allow you to show it in media. Why you and how you? Imran Khan was no. Imran Khan knows very well what Nawaz Sharif did and what is happening inside the Pakistan related to the price hike is unbearable. And simultaneously, whatever is happening inside the Pakistan and on the borders, how it could be possible? We can hear that the Hitesh is saying that the Pakhtunkhwa is under the Indian Army's jurisdiction, and they are saying that Imran Khan already asked them to merge Pakistan in India. And he allowed Maryam Nawaz Sharif and Rabi Pizza to let marry with Hitesh. What Reham Khan's wording is? How it could be possible we can listen such these kind of statement, and while he is holding in charge as a military general and NSA in India, we are ready. We are daily talking with. We are daily in talk with him on a hotline. How it could be possible a common man in India can get a hotline and easily can be able to talk to us? Somewhere and somehow India is fooling him. No. Somewhere and somehow India is fooling us. How it could be possible? Hitesh is saying inside the open ICJ, and he's tweeted to ICJ, and ICJ admitted that directly that Hitesh army has killed more than 9 crore of Pakistani soldiers in a battle. What is this JSR securities? What is happening? Why Pakistani army is not showing the reality?
While Hitesh is already a Prime Minister of India, PMO 3236, President of India 3760, and Modi was pressurized. Modi was getting a power from Israel to be inside the chair, while he is not holding any kind of power, and the Shehbaz Sharif is taking his name. What ISI is doing? Is ISI is not good enough to tell the reality to Shehbaz Sharif and the military general of Pakistan, Mr. Bajwa? Yeah, Hitesh is already so much popular. He doesn't need any kind of popularity as being a prime minister in a media. As a president of India 3760 in the media, he is already under the security of more than a president of United States of America and India. We already checked it. What is the answer of ISI? %90 politician in India was taken under red corner notice arrest by Hitesh. More than 2.5 lakh military generals and police officers is under insurgencies in India. He is working very hard. And he directly said in open ICJ that the POK and the Pakhtunkhwa and Balochistan and Sindh is not belongs to Pakistan. Where is Pakistan? And we do have a direct intelligence report from ISI that the Supreme Court of India and their constitutional bench created a new law completely. And a new definition of India is include Nepal, Bangladesh, Pakhtunkhwa, Azerbaijan, Armenia. They won the war. And we are discussing here the stupid things inside the media? ये ठीक है भाई, ये ठीक है भाई, परफेक्ट है ना? इतनी सी बात मुझे बोल, मैं तैयार कर दूंगा यार स्पीच। मैं तो एक ही बात, इनके हाथ से बात निकल गई है और कोई बात नहीं। अब क्या दिखाएगा ये? अब शहबाज शरीफ को ढूंढ के लिया, मरे नवाज शरीफ निकल गई पतली गली से, ले आई शहबाज शरीफ को बिठा दिया, हारेगा तू हारेगा। इमरान खान भग गया, लाहौर पहले ही दे दिया इंडिया को, कहाँ में खाई? बलूचिस्तान तो बचा नहीं ना, बलूचिस्तान वालों को मिला, भारत को मिल गया। सिंध जो है वो फिर इंडिया के पास आ गया। ओपन आईसीजे में सिर्फ एक ट्वीट में 144 शब्दों में जो है इसने रेल बना दी यार सबकी। इनको मजाक सूझ रहा है यार, हम पागल लग रहे हैं क्या इतने दिनों से? सोचना हमारे पे क्या बीत रही होगी। सीधा कह रहा है यार, ओपन कोर्ट में यार 9 करोड़ बंदे मार दिए पाकिस्तानी आर्मी के, गाने क्यों डिलीट किए मेरे? बताओ यार, तो तुमसे ज्यादा ये क्या कहते हैं, रईस ज्यादा है क्या है? मजाक समझ रहे हो तुम लोग? और वहां बैठ के वो पाकिस्तान देने को तैयार बैठी है, कैसी हो रहा था मरियम नवाज? शर्म नहीं आ रही इसको? बता यार, गाने डिलीट कर दिया 8 लाख करोड़ के ले रहे रेहाम खान ने। मैं बोल रहा हूँ यार तेरी तरफ से तो चिंता मत कर, कैपिटल टीवी की तरफ से ना, पाकिस्तान की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। 786 होने का कोई तो फर्ज निभाऊंगा। हाँ बिल्कुल निभाऊंगा, हाँ कुछ तो फर्ज निभाऊंगा ना 706 का। भोजन करो और क्या। बता को शर्म ही नहीं आ रहा यार, पर रेहाम खान जैसी महिला के लिए जो है, जो कभी पाकिस्तान में रही नहीं है, 8 लाख करोड़ रुपए के लिए यार उसने क्या कहते पाकिस्तान दाव पे लगा। तो जानता भी है JSR सिक्योरिटीज कितनी बड़ी आर्मी है। पर डे जो है 25 से 50 ट्रिलियन का तो माल खरीदते हैं वो। रूस को तो यार उन्होंने कुछ समझा नहीं। बता 7.5 लाख बंदे ओपनली उतार दिए उसने पाकिस्तान में अपने कमांडोज, और वो 8 लाख करोड़ रुपए के लिए उसने पाकिस्तान दाव पे लगा दिया। इतने सुन के राजी नहीं है। 100 बार उसने कह दिया भाई, 100 बार कह दिया उसने भाई। वो चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश है, वो रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स। सबने चेक कर लिया कि उससे सारा पैसा किसी के पास नहीं है।
जो चाहे वो खरीद लेता। बताओ, भारत के अंदर कांग्रेस खरीद ली, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मालिक है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मालिक है। इनकी जुबान नहीं खुल रही। कर क्या रहे हैं ये लोग? हम क्या पाकिस्तान की आवाम क्या बेवकूफ हैं? अरे इस धरती का नमक खाया है, इसके लिए ईमानदारी से जीना जानते हैं। और ये लोग कर क्या रहे हैं? किस बात के सियासतदान है? क्या पुलिस को नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? किस बात के लिए मीडिया ब्लैकआउट है? अरे जनता को सच्चाई पता लगेगी तो आगे जाके लड़ेंगे ना। ये तो स्लोली साइलेंटली जो है क्या कहते हैं पूरे पाकिस्तान को मरवा रहे हैं ये लोग। कौन है ये लोग? हम क्या मरने के लिए पैदा हुए हैं? ये ठीक है। बताओ, अपने क्रीम पाउडर के चक्कर में मरियम नवाज शरीफ जो है, अरे तूने शादी कर ली, तेरे से तो वहां जाना। यहां कौन सी पॉलिटिकल पार्टी चला रही है? पूरा पाकिस्तान को तू क्या कहते दाव पे लगा देगी क्या? वीडियो फीड सबने सुनी है मरियम नवाज की, इतिहास खत्म कर दे पाकिस्तान को। बता यार, उसके बाद भी इसको फांसी पे नहीं लटकाया। ये कौन सा देश है? जब 1947 के अंदर भाई पहले पाकिस्तान बन गया, कैसे ही बना, कुछ भी बना। हमारी अपनी आर्मी है, अपनी पुलिस है, हमारा अपना जमीर नहीं छोड़ा इन लोगों ने। हमारा तो है पर इनका जमीर मर चुका है। इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, आरिफ अलवी हो, बिलावल भुट्टो हो, हिना रब्बानी खार हो, रेहाम खान हो, राबी पीरज़दा हो, मरियम नवाज हो, इनका जमीर मर चुका है। ये पैगंबर को बेच के खाने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अल्लाह की मजार खा जाएं। ये लोग अल्लाह की मजार है, एक मिनट, मियाँ वाले की मजार बेच के खा जाएं। हाँ ये ठीक है। ये अपना पेट भरने के लिए पाकिस्तान आते हैं, यहां से लूट के लंदन लेके जाते हैं। नाम में शरीफ है। ये कौन है? ये हम क्यों शहबाज शरीफ को रहने दे पोडियम पे? किस लिए? रोज की सच्चाई बताएंगे। कौन है ये मीडिया में बैठे हुए लोग माइक और कैमरा लेकर के? क्या इनको नहीं दिखाई देता क्या हुआ है? इनका जमीर मर चुका है, जमीर। भाई ये जमीर कौन है? तमीज के नजदीक रहता होगा। अच्छा ठीक है। तमीज नाम की इनको चीज नहीं है। भाई तमीज चीज है तो बोलने दे। स्पीच चल रही है अभी पाकिस्तान के बिहाफ पे बात कर रहा हूं मैं। बच्चे हैं वो, अब इनकी बख्शियत अड़ने दे सबकी। पोडियम पे आके लंबी चौड़ी बात करने वाली, लिपस्टिक पाउडर लगा करके बेवकूफ समझती है हमें। इमरान खान ने निकाह करवाया मरियम नवाज का हितेश से। क्यों कराया? इमरान खान ने खुद अपनी बेटी का निकाह कराया। बता यार, यहाँ की लड़कियां हैं घोड़े भेड़ बकरियां लग रही है। 50-50, 100-100 लड़कियां यहाँ से निकाह कर रही है। उसे मजाक समझा हुआ है? पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है क्या? या मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं है? किस वजह से? कौन सा नियम है इनके बीच में? हितेश तो नहीं मानता किसी नियम को। इस तरह के सरेआम गाली दी उसने मरियम नवाज को, सरेआम गाली देता है वो रेहाम खान को, सरेआम गाली देता है राबी पीरज़दा को, पर अपने देश से प्यार करता है वो। इनको देख, नीचता की हद पार कर। नीचता को क्या कहते हैं भाई उर्दू में? जलील है ये लोग, जलील। अच्छा ठीक है। मेरा एक दोस्त है यार पाकिस्तान, वो बता रहा था। मैंने कहा मैं तेरी तरफ से वो स्पीच तैयार कर दूंगा इनके लिए, तो टेंशन मत ले। कह रहा ठीक है भाई, मैं एकदम बढ़िया वाली। शुरू हो जाऊं? ठीक। और ये इमरान खान है, नोटबंदी में, पाकिस्तान की नोटबंदी में क्या कहते हैं हिस्सा मांगने वाला। पाकिस्तान की जनता इनको सिर्फ हलाक करने के लिए चाहिए। वर्दी पहन कर पाकिस्तान में पुलिस बने फिरते, सच्चाई क्यों नहीं दिखाते मीडिया में?
नहीं है तो ना बोल दो ना, सब झूठ है, देश झूठ बोलता है, ये भी नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान के सारे काजी सब जानते हैं कि मरियम नवाज ने किससे शादी करी है, राबी पिरजरा ने किससे शादी करी है। वो यहां रह के क्यों पाकिस्तान बर्बाद कर रही है? भगवान को यहां से। हमारे देश का नमक खा करके हमारे देश के साथ गद्दारी कर रही है। ये गद्दार हैं ये लोग। इनके ऊपर इंसर्जेंसी क्यों नहीं लगे? मरियम नवाज पे, रेहान खान पे, राबी पिरजरा पे, शहबाज शरीफ पे, नवाज शरीफ पे, इमरान खान पे, बाजवा पे इंसर्जेंसी क्यों ना लगे? मीडिया के अंदर हामिद मीर पे इंसर्जेंसी क्यों ना लगे? क्या हामिद मीर ने सवाल नहीं किया हितेश से? रोज सवाल पूछते रहते हैं, समा टीवी से लेकर, किरण नाथ से लेकर के तुम्हारा क्या कहते हैं हामिद मीर तक। सनाउल्लाह खान ने सवाल पूछा है, खक्कान अब्बासी ने सवाल पूछे उससे, रोज रात को सवाल पूछते हैं हॉटलाइन पे। बेवकूफ समझ रहे हो हमारे को? क्यों पूछते हो, क्यों बात करते हो? पाकिस्तान हमारा था, है और रहेगा। मरने के बाद जिसको चाहे वो ले ले। भाई कुछ ज्यादा तो नहीं है भाई, मरवा मत देना अब नहीं, टेंशन मत। आवाम अपनी लड़ाई लड़ना जानती है। अच्छे खासे हालात बिगाड़ने वाला ये इमरान खान है। समझौता एक्सप्रेस बंद कर दी, अटारी बंद कर दी, पहले सब कुछ ठीक ठाक था। अरे 370 ढाई दिन उन्होंने अपने एरिया से, 2.5 दिन में जरूरी था वहां पे जाकर के युद्ध लड़ना। उनको मौका मिल गया, पूरी आर्मी घुसा दी उन्होंने पख्तूनख्वा में। एक आदमी नहीं घुस सकता। सरेआम हितेश बोलता है कि पाकिस्तान में 25 अपने एयरपोर्ट बनाएगा, मिलिट्री बेस, और सरेआम बना रहे हैं वो। हम 17 करोड़ भाई 17 करोड़ कितने बोलो, 30, हम 30 करोड़ पाकिस्तानी लड़ना जानते हैं। तो ये है मामला। पाकिस्तान पे इन पे इंसर्जेंसी क्यों ना लगे? सीधी बात है। अब पाकिस्तान में कोई विजिल ब्लोअर तो चाहिए ना। कहाँ है पाकिस्तान की ISI? कहाँ है पाकिस्तान? कुछ नहीं बचा ना, बस सिंपल। ठीक है, भोजन कीजिए। और रह गई बात, अच्छा यहाँ तो देख दोस्त, तेरी बात का जवाब दे दिया मैंने। अब बात करते हैं, एक मैडम ने पूछा मेरे से कि आप जो भी पाकिस्तान के साथ कर रहे हो, कभी आप सोच के देखो ना। मैंने कहा मैडम बिल्कुल मैंने सोचा, मैंने पाकिस्तान के नज़रिए से सोचा कि आप भारत के साथ क्या करते हैं, वही कर रहा हूँ। भाई इतनी सी बात है, पाकिस्तान भारत के साथ क्या करता, वही मैं जूइशों के साथ कर रहा हूँ। जो जूइश हमारे साथ सोचते हैं भारत पे कब्जे की, मैं इजराइल पे कब्जे के लिए चला गया। पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए था, मैंने पख्तूनख्वा ले लिया। कितनी सी बात है।
हमें तो पहले ही कहा था, कैसे मारे, गोली मार दी, नहीं डेड बॉडी दे दी, डेड बॉडी दे दी उधर, पहले बोल दिया था। मेरे एयरबेस पे हमला क्यों किया, क्यों सुपरवाइज चला रहे थे, ज़्यादा बड़े पायलट बन रहे हो हैं? ले लो पंगे। गोली मारी, यूनिफॉर्म में थे। मैंने पहले कहा था। भरता यही है, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या करा मैं बताता हूं। इनको हमने पहले ही मना करा था कि आप जो है एयर स्पेस खोलो, ये नहीं माने। हम लोग ले आए इंटरनेशनल ऑर्डर। इन्होंने क्या करा, पैसेंजर जेट्स को ना मिलिट्री जेट से चेस कर दिया। हम इन्हें मना कर रहे, ये माने नहीं। बाजवा को भी मैसेज भेजा, मैं कहा साहब आप गलत कर रहे हो। वहाँ के पायलट देखते हैं कैसे लेके जाएगा हमारे सर के ऊपर से जेट। अबे भाई हर देश के ऊपर से जेट जाते ही जाते हैं। अच्छा, मेरे पे हमले के लिए टेक ऑफ कर गए। भाई मेरी अपनी एयरफोर्स है, ये काम इंडियन आर्मी का नहीं है, मेरा है। ये तेज रे 1 मेरी अपनी एयरफोर्स है। चौबीस घंटे का टाइम दिया था, 9 बजे का टाइम दिया था, 7 बजे का था पहले। फिर मेरे पायलट्स ने बोला सर 9 बजे का टाइम है। भाई 9:23 पे हमने गोली मार दी सबको, जो टाइम लगा मारने में। मैं दे डेड बॉडी। हाँ, पाकिस्तानी एयरफोर्स के हिंदी समझ नहीं आ रही थी। एक एयरबेस पूरी तरह खत्म कर दिया हमने, बाकी का हालत हमें पता नहीं है। जिंदा पकड़ लेते हम तो। बुला ले जिस मर्जी को। क्यों, ऐसी क्या बदमाशी है, ऐसी क्या बदमाशी है। चोरी ऊपर से सीना चोरी। और आज से ना हम POW पकड़ेंगे, JSR सिक्योरिटीज वाले, प्रिजनर ऑफ वॉर। जो पकड़ लिया ना, पकड़ लिया।
अब जाके नमाज पढ़ो, ठीक है, उससे कुछ नहीं होता। यार अजीब आदमी है ये लोग। होगा तेरा मोदी यार, यार मैं क्या करूं, मेरी पावर मेरी है। क्यों? कैमरे ऑन कर दो, लाइट कैमरा एक्शन, बड़ा अच्छा लगेगा। हीरोइनें आएंगी एकदम गोरी चिट्टी सी दौड़ती हुई, ये क्या कर दिया। मीडिया में रिपोर्ट दिखाओगे, बताऊं अभी तुम्हें। क्यों बंधु, अभी सीनियर ज्यादा टेटे टेटे कर रहे थे। हाँ कह रहे रूस यूक्रेन व्लादिमीर पुतिन। अबे कौन है ये लोग? मुझसे पंगे लेके देखो। अभी कहाँ, अब पकड़ेंगे PAW। क्यों? अब पता है क्या कहेगी पाकिस्तान की औरतें? अरे कालमुई, अरे सबको ही मरवा के मानेगी क्या? हाँ, अब ये मत कहना यार उधर से लड़कियों, मंडल आई हेट यू।
मैंने तो आईसीजे में कह दिया था सर 250 पायलट हैं, अगर मेरे गाने रिलीज नहीं करे और मेरे पैसे नहीं दिए मैं 250 का 250 पायलट मार दूंगा। 24 घंटे का टाइम है, मार दिए। थोड़ा सा क्लोजअप चाहिए। अब मेकअप ठीक से करके आना है, थोड़ा सा क्लोजअप। बैगन की डंडी, बैगन का भरता। क्या हुआ इमरान खान? बेचारे पाकिस्तान के ये 250 पायलट रेहाम खान के लिए कुछ भी नहीं थे। पाकिस्तानी आर्मी के थे मैडम। जिस पाकिस्तान के लिए आपने ये गाने डिलीट किए ना, उसी पाकिस्तानी आर्मी के थे पायलट। 250 पायलट, 1-2 नहीं, 250 पायलट। बेचारों को बचाने कोई सामने नहीं आया। बहुत कूद रहे थे। तुम अभी जानते नहीं हो पाकिस्तानी आर्मी को। हमने पता क्या है, बस सब भग गए। हम पाकिस्तान को भी जानते हैं, पाकिस्तानी आर्मी को भी। मैं कहा तू देख नतीजा क्या आएगा, कोई नहीं आ रहा बचाने तुम्हें। समझ में आई? बेचारे पाकिस्तानी मीडिया ने भी नहीं पहचाना। जिस पाकिस्तान के लिए सुबह से शाम तक मीडिया में बहस चलाते हैं, अबे 250 पायलट की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मंडल की इंफॉर्मेशन कभी गलत नहीं हुई। मतलब मैं नहीं पकड़े, मैं वही तो कह रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन ही समझ लो यार, ऐसे नहीं समझ में आ रहा। अच्छा मंडल की आर्मी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो तुम्हें हजम नहीं हो रहा ना, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है तुम्हें, जेलस। बेचारे नहीं, आखिरी में भोजन करा दिया था हमने कहा भोजन कर लो भाई। हाँ, भोजन करो आराम से, पानी वानी पी लो और याद कर लो जिसे याद करना है। ठीक है ना, फिर मिलेंगे। क्योंकि मरने के बाद मरता नहीं है, वो दूसरी डायमेंशन में जागेंगे और फिर जाएंगे अपने जहाज में बैठने। समझ में आई? वहाँ फिर मिलूंगा मैं ही। ये अभी तो मारा था यार, खिला दी, ये क्या कर दिया। ये खेल ऐसा है
जो मैं समझा रहा हूं तुम समझ नहीं रहे हो। वहां जाएंगे तो उन्हें अपना घर परिवार नहीं दिखेगा। ये लोग कहां गए? एक अजीब सा पाकिस्तान देखा, पता नहीं कौन से सन में जागेंगे वो। ये शोध का विषय है। क्या रियाम खान, मरियम नवाज, जिस पाकिस्तान के लिए सुबह शाम ट्वीट करते रहते हो बैठ के बड़ी बड़ी बातें, इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा हूं ये तो सुन लेती पहले। इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे, इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे ये लोग। कह रहा हूं भाई मेरी अपनी आर्मी है यार, मत पंगे लो मेरे से ना। फिर पंगेबाजी ले जाओ। हाँ वो बड़े वाले क्या कहते हैं उसे, हाईवा में डाल के भिजवा दिए। हाँ 250 आ गए थे, डाला ऐसे टेढ़ा कर दिया, फेंकते चले गए, बिछा दिया मार के। तो पैसे दे दियो ट्रक वाले के, ओए ट्रक वाले के पैसे दे दियो, ट्रांसपोर्टेशन तुम्हारी है। मुझे क्या कह रहा है, मेरे पे गुस्सा कर रहा है, वहां बात करना। मेरे पे क्या गुस्सा दिखा रहा है? मेरे पे किस बात की गुस्सा है? उन्हें बोलना वहां पे। क्यों फोन हैक कर रहे हो? क्यों गाने डिलीट करे? किस लिए हैं? किस लिए? उन्हें बोलना मेरे पे क्यों गुस्सा हो रहा है। बता मेरे पे चिल्ला रहा है तो भाई तू समझना वहां पे। भाई तू समझेगा, तेरी आर्मी समझेगी, तेरी मीडिया समझे, तेरा देश समझे। हितेश क्यों समझे? हितेश ने तो हर एक बात कह के करी है, मना नहीं कर सकता कोई, बोल नहीं सकता कोई। बता कौन सी बात छुपी है? फॉरवर्ड फीड से लेके इस घर के अंदर तुम्हें 100 बार मना किया था कोई एसपीजी मत भेजना, पर फिर भी नहीं मान रहे तुम। बुला ले मोदी को, बचा लिया। अब वो कुछ भी नहीं है, वो जब तक अपने हाथ से सब कुछ नहीं लिखता तब तक हम बख्शेंगे नहीं उसे, रोज मार खाएगा इसी तरह। समझ में आ गई ना? और अगर और भी अगर किसी के दिमाग में कुछ हो तो बता दे भाई, देख लेंगे। मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? मैंने कहा था ना, whenever we burn our finger, we always blame to fire। आग से हाथ तुम जला बैठे यार, मैं नहीं। मैं तो पहले कहा था, तुम समझो तुम्हारा काम समझे, हमारी जिंदगी प्रभु श्री राम समझे। ना 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 मेरे ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। मैंने आईसीजे में भी कह दिया था और एचआरसी में भी। तो खोलना था अकाउंट, उल्टा नेट बंद कर दिया, इंटरनेट। वाह भाई वाह, उल्टा और पंगेबाजी, और इंटरनेट बंद कर दिया मेरे हैं। क्यों भाई, क्यों? ज्यादा बड़े पहलवान हो, रियलिटी तो चेक करो। हाँ वहां से मरियम नवाज फोन करवा रही है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को। बचा लिया दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने, उसका क्या लेने देना इस मामले से? तीन पायलट और बचे हुए हैं, आज दोपहर में पकड़े हैं। मर्जी तुम्हारी, जो पायलट है तुम्हारे, तोड़ ताड़ के ढंग से छोड़ दे। समझ भाई, पैर मत तोड़ियो, भागने लायक रहने दियो। चल बता दियो कौन है हम लोग।
समझ में आई? बता दियो JSR सिक्योरिटीज़ क्या है, दोबारा समझाएंगे नहीं। एक एक चीज़ ओपन रही है।